Hello, 5th standard students. Welcome back to our maths period. Today we are going to learn fraction. New chapter, fraction. 5th standard you have already studied this. Okay. Today we are going to study fraction. What is the fraction? Equivalent fraction. आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? What is the equivalent fraction? Okay, look, one example is given here. What is the example? That if one bhakri is divided equally between two peoples, each one will get half a bhakri. Okay, look here. Here is a fraction. Look here. This one. This is one whole bhakri. Okay, and if one bhakri is divided equally between two peoples, this is one bhakri. What is this? This is a bhakri. क्या है? भाकरी है. ओके, इफ वन भाकरी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू पीपल्स, ईच वन विल गेट अ हाफ. ओके, टू पीपल्स को दे दिए तो व्हाट इज? ईच वन गेट हाफ भाकरी. ओके, द फ्रैक्शन हाफ इज रिटर्न एज 1/2. इसका मतलब क्या है कि जो वन भाकरी थी, वन भाकरी, ओके, वी विल डिवाइड दिस भाकरी इक्वली बिटवीन टू पीपल्स. अभी ये वन भाकरी हमें दो पीपल्स को डिवाइड करनी है. तो दैट मीन्स वन भाकरी के हमने कितने पार्ट किए? 2 पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 2 पार्ट्स. ओके, बिटवीन 2 पार्ट्स one will get 1 person and another 2/1 will get another person. This is for one person. Okay, and this one is for another person. Okay, here one person and this is for another person. Okay, 2 persons are there. We divided one bhakri equally between two peoples. This is one people and two another people. Okay, तो what will each one get? What? हाफ भाकरी. तो हाफ कैसे लिखते हैं? 2 पार्ट में से. देयर आर 2 पार्ट्स. 2 पार्ट में से 1 पार्ट फॉर 1 पर्सन एंड 2 पार्ट में से 1 पार्ट फॉर अनदर पर्सन. हियर दिस वन, ये जो 1 है इसको क्या बोलते हैं? दैट इज, लुक हियर, 1/2. हियर 1 इज न्यूमरेटर. इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. and 2 is a denominator. क्या बोलते हैं इसको? denominator. Okay, understand what is this? If one bhakri, this is one bhakri, if we divide this one bhakri between two peoples, that means 2 पार्ट्स के वन भाकरी के, तो वन हर एक को 1 पार्ट मिलेगा. 2 में से 1 पार्ट, 2 में से 1 पार्ट. ओके, तो हाउ वी राइट दिस? हाफ कैसे लिखते हैं? 1/2. इसमें 1 जो है, 1 इज कॉल्ड, 1 इज द न्यूमरेटर एंड 2 इज द डिनोमिनेटर. ओके, वन भाकरी इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. भाकरी वही है, वन भाकरी इज देयर. इफ वी डिवाइड इट इनटू 4 equal parts, two of the parts are given away, that is shown as 2/4. here 2 is the numerator. अभी देखो, इसमें 1 भाकरी थी, उसके हमने कितने पार्ट्स किए? 4 पार्ट्स किए. ओके, पीपल्स आर 2 हियर, तो एक को कितने पार्ट्स आएंगे? 4 पार्ट्स है. टोटल पार्ट्स आर 4. ओके, 4 में से हाफ पार्ट मतलब 2 पार्ट्स. These 2 parts will get 1 people and another 2 parts will get another person. Okay, so here also 2 is a numerator and 4 is a denominator. Okay, understand? Now another one is, if we had one bhakri
हाँ, okay, there is one bhakri again. हाँ, if the three example, this example, look this color part, इसको color करते हैं हम लोग. This is color part. Use pencil for color this. Last year आपने ये किया है. Okay, understand? Look at the color part of the two equal circles shown alongside. The one circle is divided into three equal parts. With the two circles are there. One circle is divided into three equal parts, and one circle is divided into three equal parts, and two of the are the color. देखो, इसको थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है और टू पार्ट्स को कलर किया है. दिस टू पार्ट्स आर कलर्ड. ओके, दैट इज द कलर्ड पार्ट. इज कलर पार्ट कितना है? इसको देखो, थ्री पार्ट्स है. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? थ्री. तो थ्री में से कितने पार्ट्स को कलर किया है? दैट इज टू पार्ट्स आर कलर्ड. दिख रहा है कलर्ड किया हुआ पार्ट? लुक दिस कलर पार्ट दिख रहा है. दैट इज थ्री पार्ट में से टू पार्ट्स को कलर किया है. ओके, द अनदर सर्कल इज दिस. अनदर सर्कल, द अनदर सर्कल of the same size is divided, same size same है, is divided into six equal part. 1 2 3 4 5 3 and 3, six parts. Okay, 1 2 3 4 5 and 6. Okay, here four of them are colored. अभी इसमें से कितने पार्ट्स को कलर किया हमने? फोर पार्ट्स को. 1 wait 1 2 3 and this one 4. Okay, how many parts are there? There are six parts. How many parts are there? Six. Two parts color किए यहाँ पे. Here out of six parts, four parts are colored. Okay, that is 4/6 of the whole circle is colored. दैट मीन्स होल सर्कल में से सिक्स में से फोर पार्ट को क्या किया है? कलर किया है. हाउएवर वी सी दैट द कलर पार्ट ऑफ द टू सर्कल्स आर इक्वल. हाउ? देखो यहाँ पे फर्स्ट सर्कल में थ्री पार्ट्स किए हैं. थ्री में से टू पार्ट्स को कलर किया है. सेकेंड पिक्चर में सेम साइज सर्कल है, सिक्स पार्ट किए हैं. सिक्स में से फोर पार्ट्स कलर एंड सिक्स आउट ऑफ फोर पार्ट्स आर कलर्ड. सो लुक हियर, however we see that these two parts are equal. How? Thus 2/3 is equal to 4/6 are equivalent fraction. इसको क्या बोलते हैं? Equivalent fraction. Understand? Okay, here also 1/2 क्या है अपना? ये फर्स्ट वन फ्रैक्शन क्या था? फर्स्ट हियर 1/2 equal to 2/4. इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, देन अभी हाउ टू वी ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हम लोग निकालेंगे? हाउ वी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? लुक हियर, देयर इज सम square is there, sorry, rectangle. Look here is a rectangle. Okay, this is the rectangle. We divide this two of the five parts. इसमें से जो है इसके हमने फाइव पार्ट्स किए हैं. 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 5 parts are there, and we colored two parts, one part and two part. Okay, two parts को क्या किया हमने? We colored two parts here. Okay, इसमें से टू पार्ट्स को क्या किया है? कलर. Look here, two of the five equal parts. Wait, here also another. Look here, another example. Two of the five equal parts, 1 2 3 4 5 equal parts है. Two parts of the five equal parts in the figure are colored. The colored part is, अभी फाइव में से कितने पार्ट्स किए थे पहले हमने? फाइव इक्वल पार्ट्स. आउट ऑफ फाइव टू पार्ट्स आर कलर्ड.
okay, of the whole figure. Understand? When two lines, when we art is that, okay, but इसमें हमने क्या किया, we draw two lines like this one and this one. When we draw the two lines across this same figure, it's get divided into 15 equal parts. 15 equal parts हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. How many? 15. So now the fraction that shows the color part is out of 15 parts. आपने कितने parts हो गए अभी? 15. 15 में से 1 2 3 4 5 6 parts are colored. Understand? Okay. However, the color part has not changed. Therefore, we see that 2/5. अभी कलर पार्ट तो चेंज नहीं हुआ. वी फॉर हमने क्या किया, बस यहाँ से एक दो लाइन्स, क्रॉस लाइन्स ड्रॉ किए. ओके. सो व्हाट इज दिस? देयरफॉर वी सी दैट 2/5 इज इक्वल टू 6/15. ओके. हमें क्या दिखाई दे रहा है अभी? 2/5 इज इक्वल टू 6/15. Okay, look here now. Do the same and especially connect between the numerator. Do the same and what is the connection between the numerator and denominator of the fraction 2/5 and 6/15? हाँ, अभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्या है? इक्विवेलेंट equivalent fraction. Okay, this is the equivalent fraction. But what is the connection between these two? Okay, fractions 2/5 and 6/15. Okay, between the numerator and denominator. अभी सबको समझ में आया? ये जो रहता है above the line, that is numerator, and नीचे जो है वो that is the denominator. Here, look here, 3 times 6, 3 times 2 is a 6. मतलब 2 का टेबल बोला, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 and 5 3 ज़ा 15. Okay, what do we see here? तो 1/2 we can also see that. हमने ये भी देखा भी यहाँ पे कि 1/2 is equal to 2/4. Okay, सेकेंड क्या देखा हमने? what we learned? 1/2 is equal to 3/6. Okay, 2/3. What? 2/3 is equal to 4/6. In the two equivalent fraction, the numerator of the one fraction is as many times as the numerator. Equivalent factor में क्या होता है? The numerator of one fraction is as many times as the numerator. Okay. The others as the denominator of one is the denominator of the others. That means what? When the numerator and denominator of a fractions are multiplied by the same number, that is non-zero number, we get a fraction that is equivalent to the given fraction. मतलब क्या होता है? Okay, जब हम लोग किसी भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, जो नॉन जीरो नंबर रहेगा, तो वी गेट द फ्रैक्शन दैट इज इक्विवेलेंट. फॉर एग्जाम्पल हियर इधर देखो व्हाट, ये कैसे आ गया? तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4. हाउ? अगर हम दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2, और हियर सो 2, तो क्या 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4. अंडरस्टैंड हाउ वी गेट दिस आंसर? अंडरस्टैंड? ओके, हियर ऑल्सो दैट, यहाँ पे भी वही है. इफ वी मल्टीप्लाई 1/2, हाँ 3/6 कैसे आ गया? इफ वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय सेम नंबर, हियर 3 एंड हियर ऑल्सो 3, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6. ओके, हियर ऑल्सो 2/3 is equal to 4/6. अभी ये कैसे आ गया? If we multiply the same number, अभी here we multiply 2, that is 2 2 ज़ा 4, और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 2 3 ज़ा 6. Understand? That is called the equivalent fraction. When
the numerator and denominator of a fraction are multiplied by the same number, that is non-zero number, we get a fraction that is equivalent to the fraction. Okay, understand? Now like this, if the numerator and denominator have a common divisor, okay, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन डिवाइजर है, फॉर एग्जाम्पल 6/15, ओके, ये था अपना, इज इक्वल टू 2/5. अभी देखो दिस हियर ऑल्सो दिस टू आर इक्वल. हाउ? हियर इफ द न्यूमरेटर and denominator have a common divisor, then the fraction we get on dividing them by that divisor is equivalent to the given fraction. For example देखो 6/15 है, यहाँ पे क्या है 6/15. इसका आंसर कितना आता है? व्हाट इज आंसर? 2/5. हाउ? if the numerator and denominator हैव अ कॉमन डिवाइजर, अगर इसको एक ही कॉमन डिवाइजर है, डिवाइड करना है, इन दोनों को कॉमन नंबर ने डिवाइड किया, कौन से? 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15. ओके, अंडरस्टैंड हियर? अनदर एग्जाम्पल, दिस वन एग्जाम्पल इज दिस. अनदर एग्जाम्पल आई विल गिव हियर, दैट इज 6/12. लुक हियर, 6/12. फॉर एग्जाम्पल 6/12. 6/12 आंसर आता है आपका इज इक्वल टू 3/6. इसका आंसर क्या आता है? 3/6. हाउ? कैसे आ गई है? इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन नंबर हैव अ कॉमन डिवाइजर, इसका आंसर आता है 3/6. What is the answer? 3/6. कैसे आया ये 3/6? So if we divide this numerator and denominator by same number, अब यहाँ पे कैसे किसको डिवाइड करेंगे हम लोग? 2 से. So 2 3 जा 6 and 2 6 जा 12. Understand? Like this you have to solve, find out the proper numbers, write down the proper numbers in the box and find an equivalent fraction with the numerator, with the numbers, given numbers. Okay, look here, there is one sum is that write the proper number in the box. Question is write the proper number in the box. देखो यहाँ पे क्या है? 1/2. फर्स्ट वन इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 20. तो आपको यहाँ पे बॉक्स में क्या नंबर आएगा? इधर देखो 2 का टेबल बोलो आप. 2 10 जा 20. 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? हाँ, 2 को कैसे? यहाँ पे मैं पेंसिल से लिख रही हूँ. 1/2 आपको सॉल्व करके लिखना है. तो सेम नंबर से क्या करना है आपको? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. व्हाट इज द आंसर? 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 जा 20. अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो यू विल गेट 10 1 जा 10. दैट मीन्स योर आंसर इज 10. अंडरस्टैंड? ओके, understand what or not? Another, this one I will give you, that is 14. Second one is 14 upon 26. Okay, is equal to बॉक्स दिया यहाँ पे एंड 13. अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अ कॉमन डिवाइजर. अभी इधर देखो, अभी मैं पेंसिल से लिख रही हूँ 14 एंड 26 है यहाँ पे, और योर आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ पे बॉक्स और यहाँ 13. तो विच नंबर वी मस्ट डिवाइड हियर हैव अ कॉमन डिवाइजर. Okay, this numerator and denominator have common divisor. आपको पता है 26 13 2 जार.
13 का टेबल आता है, 13 2 ज़ा 26, तो विच नंबर, 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पे क्या आएगा 7। अंडरस्टैंड? ओके, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा और हियर डिवाइड। अंडरस्टैंड? लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व दिस वन। ये देखो, ये वाला आपको सॉल्व करना है। कैसे? फर्स्ट रूल क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट रूल? व्हेन वी, यहाँ पे आपको कौन से रूल यूज करना है? when the numerator and denominator of a fraction are multiplied by the same number, that is non-zero number, then we get the fraction that is equivalent. अगर इसको हम लोग एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। और दूसरा रूल क्या है? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव कॉमन डिवाइजर, अगर ये न्यूमरेटर यहाँ पे हमने डिवाइड किया, याद है ना, दिस वन डिवाइड किया यहाँ पे, तो इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव कॉमन डिवाइजर देन द फ्रैक्शन वी गेट इट बाय डिवाइडिंग देम, that divisor is equivalent to the fraction. Understand these two rules? Question number second क्या है? देखो, find an equivalent fraction with denominator 18. क्या है क्वेश्चन कि आपको यहाँ पे क्या करना है? find the equivalent, find, this one is that, क्या है क्वेश्चन? find an equivalent fraction with denominator 18 for each of the following fraction. अभी देखो ये सब दिया है, ये सबका डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए? 18. ओके, फर्स्ट वन क्या है? 1/2, सेकेंड वन 2/3, फोर्थ वन 4/6, फिफ्थ वन 2/9. ओके, लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? व्हाट इज द योर क्वेश्चन कि आपका जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, वो 18 आना चाहिए. अभी डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? आपको ऐसे लिखना है, लाइक दिस, राइट डाउन लाइक दिस. ओके, हाँ, and write here answer. Your answer will be here. तो what is the question कि डिनोमिनेटर 18, देखो ऊपर ये दिस इज द न्यूमरेटर एंड नीचे जो रहता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं. तो इसको आपको सॉल्व करने के बाद इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है जिसका डिनोमिनेटर कितना होगा? 18. मतलब ये सबका आंसर कितना आना चाहिए? नीचे 18, सबका डिनोमिनेटर 18 आना चाहिए. ओके, तो लुक हियर, फर्स्ट वन 1/2 क्या है? तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, दैट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है. 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है? 2 9 ज़ा 18. ओके, लाइक दिस. आपको फर्स्ट रूल क्या है? when the numerator and denominators of a fraction are multiplied by same number. अभी यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 9 1 ज़ा 9. ओके, हियर 18 है, फर्स्ट ये फ्रैक्शन लिख के लो, 2/3. अभी 2 को 3 को विच नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है? हाँ, 7 6, 3 6 ज़ा 18. तो आपको न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? सो 6 2 ज़ा 12. ओके, हियर 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 6. अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? विच नंबर? 6 2 ज़ा 18. तो हियर ऑल्सो 4 2 ज़ा 8. हियर 2/9 विच नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? सो 9 2 ज़ा 18. सो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, अब ये दिस वन, लुक हियर you must find out equivalent fraction. Here also you must find out equivalent fraction, बस डिनोमिनेटर मस्ट बी 5. अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना चाहिए? 5. ओके, डिनोमिनेटर मस्ट बी 5. तो सम इज
6/15, 10/25। देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लुक दिस सम्स। अभी जैसे हमने लिखा था वैसे यू हैव टू राइट हियर like this. Here what is the question, denominator must be 5, तो डिनोमिनेटर अपना कितना आना चाहिए 5। तो अभी यहाँ पे दूसरा रूल यूज़ करना पड़ेगा, 15 इज अ बिगर नंबर, स्मॉल नंबर आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अ कॉमन डिवाइजर, दैट मीन्स पहले ये 6/15 लिखो, अभी इधर हमें उनका कॉमन डिवाइजर निकालना पड़ेगा। डिवाइजर मतलब सेम नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, लाइक दिस। 5 के टेबल, 5 का टेबल बोलो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ओके, 5 3 जा 15। सो इधर 3 से डिवाइड किया है तो इधर भी ऊपर न्यूमरेटर ऑल्सो यू मस्ट डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, हियर 5 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, लाइक दिस यू मस्ट डिवाइड numerator also, 5 2 जा 10, understand, like this you have to complete this one and this one, okay, and this also, understand, and try to find out, solve this question number 4 क्या है, from the fractions given below pair of the equivalent fraction। अभी इसमें equivalent fraction कौन से वो फाइंड करना है, here 2/3 है, तो किसको डिवाइड करने के बाद 2/3 आता है, look here 2/3, where here 9 2s are 18, 9 3s are 27, 2/3 आता है, this will I will teach you this tomorrow, okay, now I am going to stop here।